A very good morning to our respected Ruchika Malhotra ma'am, Head Department of Software Engineering, special guest Mr. Krishan Kumar Singh Yadav, Assistant Director, Advanced Level Telecom Training Center, Ms. Priya Singh ma'am, Assistant Professor and Coordinator for Event, and respected faculty members, PhD scholars, and dear students. I, Achal Gautam, feel privileged to extend my warm welcome to all presented here for today's workshop on behalf of DTU. Recently, our department has started to new course, Skill Enhancement course, 2023 to 2024 session for newly invited admitted BTech students under the recommendation of our HOD ma'am. The objective behind organizing this skill enhancement computer workshop for faculty member is to apprise them about basic knowledge related to computer hardware aspects. In this course, it's work with various hardware, software, operating system, and networking in academia as well as industry. So we can enable students to identify and rectify on-board computer hardware, software, and network-related problem. Under the expert session with vast knowledge by Mr. Krishan Kumar Singh Yadav, sir, guidance, it is good opportunity for us all to gain knowledge and can well explain to students for the hardware specification that are required to run an operating system. Now, I extend warm welcome to our special guest, Mr. Krishan Kumar Singh Yadav, sir, and I would like to request Professor Ruchika Malhotra, ma'am, to kindly present the sapling to sir. Okay. Thank you very much, sir. Next, I extend warm welcome to our Professor Ruchika Malhotra, ma'am. I request Ms. Priya Singh, ma'am, Assistant Professor, Coordinator, to offer sapling to ma'am. Next, I extend warm welcome to our coordinator, Ms. Priya Singh ma'am, and I request Ayushman Saini to offer sapling to ma'am. Thank you very much, ma'am. So every one of us are aware, we have also discussed it with sir, that we have recently started a computer workshop which includes hardware and network portion. So he has expertise in telecom networking hardware, as well as he told me blockchain and IoT and other devices that will continue. So we'll continue this series of workshop. So today he will give us a practical idea about the hardware and the networking portion. I am very thankful to Ms. Priya Singh that on a short notice she has arranged this workshop for all the faculty members, and hopefully this session will be very useful and fruitful to all of us. Sir, just to give you a brief, we are a Department of Software Engineering. We started a BTech program in software engineering in 2000, way back in 2009, and we have an intake of 180 students in BTech, and we have two MTech programs, one in MTech Software Engineering and one in MTech in Data Science. So today it's a training program for our faculty members. Sir has told me that this center is doing national as well as international training for telecommunication and networking part. So if some of the faculty member want, and they have very good government projects, he told me that recently they have developed a health ATM which is on testing at CSIR and already installed in Lucknow, and very good features he has discussed with me. So we'll continue the association with his organization, but today it's just the start of the series of our workshop, and Priya, please keep on calling him and inviting him. So he has told me that on international and national level BSNL is this is a training center in Ghaziabad of BSNL, where it is dealing with all the training and of advanced equipments here even. So I welcome sir, and I'm thankful to Priya for organizing the workshop. So already so not taking much time, sir, you can please start with the workshop. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब बनी थी तो इंडस्ट्रियल की तरफ से जो नॉमिनेशन दिया गया था, जो भी रिकमेंडेशन दिया गया था, तो किस्मत से वो चीज़ मैंने ही दी थी आपके सामने, कि हमारा ये कोशिश था कि क्योंकि लगातार हम लोग जब चीज़ बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो लोग पढ़ा रहे होते हैं और जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। सोचने का तरीका ही अलग है।
हम भी पढ़ाई करके आए, काफ़ी हमने भी एजुकेशन जनरेट किया, लेकिन जब हम फील्ड में गए तो मेरा काम करने का जब शुरू किया तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि हम पढ़ते क्या हैं, होता क्या है। ठीक है, तो जो धीरे धीरे काम करते करते फिर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ अगर दोनों का कम्बिनेशन कर दिया जाए तो नो डाउट कि हमारा जो थिंकिंग लेवल है जो यहाँ था वो बहुत ही ऊपर चला जाएगा। तो इसी संदर्भ में मैंने थोड़ी तो छोटी सी कोशिश की है, आज का मौका दिया है आप सभी के लिए, तो पहले धन्यवाद। तो मैंने एक इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस उसको ऐड ऑन करते हुए लास्ट में आपकी तरफ से जो सिलेबस के आधार पे दिया है उसको भी हम पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लाइव टेलीकॉम नेटवर्क टोपोलॉजी, बुक्स में हमने क्या पढ़ा एक अलग मैटर है, रियल में टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे पास में ये जो फ़ोन है ना, हम सभी बात करते हैं। एक समय था कि लोग बिना बिजली के रहते थे, क्या आज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रह सकता है कोई? नहीं रह सकता है ना। तो वैसे ही विदाउट कम्युनिकेशन या आईटी के बिना आज के ज़माने में हम लोग नहीं रह सकते, बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा सच्चाई है। ठीक है, तो इसमें जो हमने आज कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले जो डिवाइसेज हैं ये पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे लिखा है, उसके बाद हम बात करेंगे रियल नेटवर्क पे। और ये जो दो चीज़ें हैं इसको मैं अपनी तरफ से एक लैन केबल की सारी डिवाइस को मैं प्रैक्टिकल करने दिखाऊंगा और एक आपका हार्डवेयर है उस पर भी दोनों बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नेक्स्ट से करिए, टेलीफोन एवरीबॉडी नो वेट इज वेल। अब बात करते हैं सबसे पहले जर्नी के बारे में। सबसे पहला सवाल आप लोगों से है, क्योंकि आप लोग बताएं, मुझे क्या है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार बता रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से बताना है। अगर मैं किसी से ये सवाल पूछूँ, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, आपने कहा कि मैं फैकल्टी मेंबर हूँ, नो डाउट पढ़ाते होंगे। किसी से पूछूं कि आप क्या करते हो, कोई कहता है कि मैं किसान हूं, तो समझ में आ जाता है कि वो खेती बाड़ी करता होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं किसी से ये पूछूं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो, ठीक है, तो मैं क्या कहूँ कि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, आपके दिमाग में क्या आएगा? एनीवन बोलना है, आपको बताना है, बताइए। अगर मैं कहूँ कि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, आपको टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं, यू हैव नो नॉलेज अबाउट एनी टेक्नोलॉजी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई कहता है कि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो आपके माइंड में क्या आएगा? मैं क्या काम करने के लिए, क्या मेरा काम होगा, लोगों को क्या मदद करते होंगे हम लोग? कम्युनिकेशन तो कॉमन हो गया, एक कम्युनिकेशन नो डाउट, एवरीथिंग कम्युनिकेशन, अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ। टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले पुराने टाइम में, थोड़ा पीछे जाइए, क्या कराते होंगे? बहुत ही सिंपल है, अभी आप उस पीढ़ी में हैं जहां आपको इस बात की जानकारी है कि टेलीफोन डिपार्टमेंट का मतलब है कि हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं, सीधा सा बात है। हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। उसको करने के लिए क्या क्या इंजीनियरिंग किए जाते हैं अलग मैटर है, लेकिन सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है कि उसका आंसर यह है कि हम एक दूसरे को, दिसंबर 2025 के बाद ये सिस्टम ओवर होने वाला है। उसके बाद की जो पीढ़ियाँ आएंगी, आपके जो स्टूडेंट आएंगे, यानी करीब 10 साल बाद 2035 का कोई स्टूडेंट खड़ा होगा, यहाँ बैठा होगा, अगर आप उससे कहोगे कि हमारे टाइम में नंबर डायल होता था, तो सबसे पहले आपकी शक्ल देखेगा, क्या डायल का मतलब क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज डायलिंग। ठीक है, लेकिन आज आप बताइए, आज कम्युनिकेशन के लिए आपके पास में नंबर डायल करने के अलावा आपके पास कम्युनिकेशन की क्या क्या व्यवस्था है? आज आप नंबर डायल करते हैं? आप अभी कर रहे हैं, मैंने भी बोला दिसंबर 2025 के बाद जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत, जो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी एनटीपी बोलते हैं, न्यू टेलीकॉम नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी है, जो सितंबर में अभी हम लोगों ने मसौदा जो तैयार किया है, उसके अंतर्गत दिसंबर 2025 के बाद कोशिश है कि नंबर डायल ना करना पड़े। आज हम सभी लोग एक दूसरे को कैसे बात करते हैं? मोबाइल उठाया, मैसेज भेज दिया, वीडियो भेज दिया, टेक्स्ट भेज दिया, व्हाट्सएप या व्हाट्सएप कॉल करना हो या जूम के माध्यम से, माइक्रो जो आपका सॉफ्ट टीम है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप क्या दिस इज कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन है। क्या आप इसको टेली कम्युनिकेशन कहेंगे? कम्युनिकेशन है ना। अभी आपने कहा कम्युनिकेशन एक कॉमन वर्ड है, बहुत ही सिंपल भाषा में। पहले टेलीफोन होता था और आज हम टेलीफोन का एक नया स्वरूप देख रहे हैं, जिसको चलाने के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, है ना। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क। द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज IT कम्युनिकेशन। पहली चीज़ कंफर्म है, आज कोई टेलीफोन डिपार्टमेंट नहीं है, एवरी डिपार्टमेंट इज नोन एज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टेलीफोन का ही नया स्वरूप है। आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसी बच्चे से पूछ लो तुम सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हो, तुम्हारा सॉफ्टवेयर खरीदेगा कौन?
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं कोई मेरे पास नॉलेज है नो डाउट, लेकिन अपने नॉलेज को कहाँ इन्हेंस करना है, कहाँ यूज करना है, अगर बच्चों को नहीं पता कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे साथी हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। कॉलेज के टाइम में हम उनके गाने के दीवाने थे, कहते थे कि भाई ये मोहम्मद रफ़ी के जैसे गाना गाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरा गाना कहाँ पे गाना है, किसके साथ प्रेजेंट करना है। बाथरूम सिंगर बन के रह गए। एक मेरे दूसरे फ्रेंड है, मैं बनारस शहर का हूँ, रुचिर सिंह, वो भी मेरे इंटर में साथ में रहे, लेकिन वो गाना बिल्कुल कहता है ना रफ टप आता नहीं था, लेकिन वो आज मुंबई के अंदर अपना एक प्राइवेट एल्बम इतना शानदार तरीके से उन्होंने प्लेटफॉर्म से ही पकड़ लिया कि मुझे लोगों को सुनाना है, लाइक करवाना है, बताना है, ठीक है, उन्हें सही प्लेटफॉर्म। इसी तरह से आप अगर हार्डवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपको मालूम है, यू आर एक्सपर्ट हाउ टू मेक सॉफ्टवेयर, हाउ टू मेक हार्डवेयर, बट इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये चीज़ अगर पता नहीं है, उस नॉलेज का कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है, तो बहुत ही सिंपल बात है, टेलीकॉम आज की डेट में नहीं मिलेगा। टेलीकॉम का एक नया स्वरूप मिलेगा जिसको हम बोलते हैं आईटी कम्युनिकेशन, जिसको चलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं और आप सभी लोग किस्मत वाले हैं कि इसमें मैंने जो सारी चीज़ें लिखी हैं, ये सारे सफ़र हम लोगों ने तय किया है। सिंपल डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, कोई नाम ऐसा नहीं है जो आपने ना जानते हो ना सुनते हो, सारी चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल मैनर में डिस्कस करूँगा कि जर्नी कैसे शुरू हुई। और रियल में ऑर्डिनरी डिवाइस आपने देखा होगा। अब मैं आप सवाल को क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कौन है जो बहुत ज़्यादा जिसकी आवाज़ में तेज़, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो सुने मेरे सवाल का जवाब दे सके? वॉलंटरी, आप फैकल्टी हैं, आज आप बच्चे की तरह बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा आपको भी, ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। सिंपल तरीके से पूछता हूँ, ये सारे चीज़ का एक साथ ही सोल्यूशन आ जाएगा सारे चीज़ का। ये फैन देखा आपने, पंखा, ठीक है, आपकी आवाज़ में दम है, आ जाएगी रिकॉर्डिंग में, ठीक है, आपके पास ही खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप मार्केट गए, आपने एक पंखा खरीदने गए, ये वाला फैन खरीदने गए, बहुत ही सिंपल है, और दुकानदार ने कहा भाई मेरे दुकान पे पंखा खरीदने आओ। हिंदुस्तानियों की तो आदत होती है, पहला सवाल पूछता है कितने बजट का चाहिए, वो कॉमन रहेगा, कभी जाएगा नहीं। दूसरा सवाल पूछता है कि आपको आजकल ऑप्शंस हैं, आपको कैसा पंखा दिखाया जाए, कैसा फ़ैन दिखाया जाए, ऑर्डिनरी फ़ैन या नॉर्मल फ़ैन, इंटेलिजेंट फ़ैन, स्मार्ट फ़ैन, एक अभी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का एआई फ़ैन आया हुआ है। अब मेरा सवाल है बहुत सिंपल, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये फ़ैन नॉर्मल है? अब बताइए, आपके सामने चारों पंखा रहे, लुक वाइज देखने में सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन कोई तो बात होगी कि मैं इस पंखे को नॉर्मल बोल रहा हूँ, किसी को इंटेलिजेंट बोल रहा हूँ, किसी को स्मार्ट बोल रहा हूँ, सफ़र वाइज चलेंगे। सबसे पहले आप बताइए नॉर्मल फ़ैन कौन सा होगा, कभी सोचा आपने? हाँ जी, रिमोट अगर ऑप्शन में होगा तो नॉर्मल फ़ैन कौन सा होगा सर? हाँ जी, स्विच, और पीछे भाई क्वेश्चन सभी के लिए है, आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप यस देखो मेरे पास रेगुलेटर, ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर मेरा पंखा है, नॉर्मल फैन है, उसको ऑन ऑफ करना, स्पीड बढ़ाना, घटाना, एवरीथिंग इज मैनुअल, इसमें कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन नहीं है, एवरीथिंग इज द मैनुअल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा फैन नॉर्मल है, क्यों? इसके हर चीज़ मैनुअल है, स्पीड बढ़ाना हो, घटाना हो, ऑन ऑफ करना हो, हर चीज़ आप मैनुअल करेंगे, यही तो करेंगे। अगर मैं अब इंटेलिजेंट फैन के बारे में बात करूं, 1 बाय 1 चलिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फैकल्टी हैं, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है और आप अच्छे से जानते हैं, बस इसको थोड़ा सा एज ए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपकी थिंक मैं बोल रहा हूँ एज ए इंडस्ट्रियल, मैं फैकल्टी नहीं हूँ, लेकिन मैं इंडस्ट्री में जानता हूँ। मैं सबसे पहले मेरे सामने ही कन्फ्यूजन हो गया, ये नॉर्मल क्लासरूम करिए, हमारा लैब है, ये इंटेलिजेंट लैब, ये सारे लैब हैं मेरे पास, सारे लैब हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो आप बताइए इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा? नॉर्मल फैन समझ में आ गया, ये हमारा पंखा नॉर्मल है, नो डाउट। अब ये पंखा इंटेलिजेंट कब होगा फैन? अपने आप चलेगा तो कैसे इंटेलिजेंट हो जाएगा? अच्छा चलिए मैम आपका नाम क्या है? कोई मैम आपका नाम क्या है? सोमिका जी, आप ये बताओ, आर यू इंटेलिजेंट? छोड़ दो इसकी, छोड़ दीजिए इसकी क्वेश्चन, छोड़ दीजिए। आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? कैसे? हाँ, तो पंखे के अंदर ब्रेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, वही तो सेंसर काम करेंगे, आप आएंगे तो मैं इसी पकड़ने की बात कह रहा हूँ,
मैं यही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल सी बात देखो आपको, मैं जब को मैं इंडस्ट्री की तरह आपको बिल्कुल वही चीज़, मैम ने बिल्कुल सही बोला, दुनिया में हर चीज़ इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीज़ें हों, चाहे इंसान हो जैसे भगवान ने बनाया हो, चाहे हमने कोई चीज़ बनाई हो। पहला सेंस, दूसरी मेमोरी। मैं कोई बात करता हूँ, आप मेरी बात सेंस कर सकते हैं, मेरी बात को याद कर सकते हैं, यू आर ऑल इंटेलिजेंट। इट इज़ द गॉड गिफ्टेड, एक सिंपल सी बात है, एक भगवान की देन है। अगर किसी का सेंसर ज़्यादा हो, सेंस ज़्यादा हो, मैं उसे बोलते हैं ज़्यादा। अगर एक भी चीज़ गायब होती है तो क्या कहते हैं हम लोग? हाफ माइंड, नॉनसेंस, राइट ना? मैं प्रैक्टिकल वर्ड कहते हैं ना, हम ये आंसर है हमारे पास, ये समझने की जरूरत। अगर इसी पंखे में एक सेंसर और मेमोरी चिप लगा देंगे, हेल्प ऑफ द एवरीथिंग बाय द रिमोट, जो आप स्पीड बढ़ाना, घटाना, रोटेट करना, हर चीज़ आप रिमोट से करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ये सफ़र भी खत्म हो चुका। अगला आ गया स्मार्ट। मैम आप इंटेलिजेंट हो गई, अब बताइए स्मार्ट है यस या नो? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, एवरीथिंग बात करते हैं ना आप। हम मैं मेरे ज़्यादा स्मार्ट सिटी बना रहा हूँ, उसमें पूरा इंडिया में कई शहर होंगे, आप जानते ही होंगे, स्मार्ट सिटी बताते भी होंगे नो डाउट, सेमिनार भी बहुत अटेंड किया हुआ। तो पहले तो मैं समझने की कोशिश करें कि आप स्मार्ट हैं यस या नो। आप बताना पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा, इंटेलिजेंट में बता दे इसका भी आंसर। नहीं टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल तरीके में बताइए। टेक्निकल आप अपने बच्चों को बताइए, आपस में एडजस्टमेंट कर लेती है। अच्छा ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना सभी ने? ऑप्टिकल फाइबर एवरीबॉडी वेल नोन, आज की डेट में तो बहुत कॉमन शब्द है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि उसमें हमारे यहाँ एलटीटीसी में हर लोग, हर तरह की ट्रेनिंग, आईएएस भी आएगा, आईपीएस भी आएगा, इंटरनेशनल हर तरह के ट्रेनिंग जो भी संभव हो सकता है सारे लोग आते हैं, ठीक है। अब एक बैच आया, मैंने उससे पूछा राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज बताओ। पहला लिखता है सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकती, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है। 4 पॉइंट यू बता दिया, गलत तो है नहीं, ये उसकी क्वालिटी है, बट नॉट एक्यूरेट आंसर। एक्यूरेट आंसर एक ही था, हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन एज ए फैकल्टी जैसे आप पूछते हैं ना अपने बच्चों से, तो हमने भी पूछ लिया 5 पॉइंट लिखने हैं तो भाई भरना है, ठीक है, लिख दिया, ओके। तो आपका आंसर ओके, तो मुझे वो 4 आंसर नहीं चाहिए, मुझे वो 5वां आंसर चाहिए। जैसे कि नो डाउट इंटेलिजेंट में आपने क्लियर कर लिया ना कि बहुत ईजी है आइडेंटिफाई, उसी तरह स्मार्ट में भी तो कोई ऐसी बात होगी। पकड़ा तो सही है आपने, हाँ मैम। ठीक है मैम, ये भी एक फीचर हो सकता है। अच्छा मैं एक छोटा सा चीज़, इसी में सारे आंसर मिल जाएंगे, एक रफली में फट से मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पता भी रहे, परमानेंट याद रहे। मेरे टाइम में, आपके भी बहुत सारे लोग बैठे मेरे से पहले की इंजीनियरिंग की होगी, तो उस समय इंजीनियर बनना एक ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी 1994 में। उस समय अगर सिलेक्शन हो जाए ना, क्योंकि पहले रुड़की वाले अपना अलग कराते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की अलग कराती थी, आईटी वाले अलग कराते, एसएम धर्मा सब अलग कराते, एक ज़माना था उस समय का, मैंने पेपर तब दिया हुआ था। तो उस टाइम पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो बनारस शहर के पूरे सड़कों पे क्या इंटेलिजेंट, मतलब कितना होशियार बच्चा है, इंजीनियरिंग करने जा रहा, वो ज़माना था, ठीक है। आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, क्योंकि कॉलेजों को पता नहीं होता था कितने बच्चे रिपोर्ट करें, तो मैं गया यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, वो 90 सीटों का सिलेक्शन कराता था उस टाइम पे, मुझे याद है। तो वो पहले दिन इसी तरह से, उन्हें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं कि कितने लोग आएंगे ज्वाइन करें, क्लास में बैठा हुआ था, क्योंकि इनको ये बिल्कुल लगता ही नहीं था कि कितने बच्चे रिपोर्ट करेंगे, तो ऐसे ही बैठे हुए थे। और नो डाउट एक कठिन परीक्षा पास करके आए थे, तो ऑल आर इंटेलिजेंट। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, मैं अपने पड़ोसी को नहीं जानता, साउथ इंडिया था मिस्टर दी सतीश बाबू, ठीक है। क्लास में मैंने 2 चीज़ ऑब्जर्व करी, उसी में इसका आंसर है। पहला आप ऑब्जर्व कि क्लास में आपके साथ भी होगा, अगर कहीं फर्स्ट टाइम गए होंगे, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मैंने अब महसूस किया क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे थे, खड़े होते थे, हर टेबल पर जाकर बात करने की कोशिश करता था, कुछ ज़्यादा ही। तो मेरे अंदर से आवाज़ आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है यार। ऐसे ही मेरे जो पड़ोसी में बैठे थे दी सतीश बाबू, हैदराबाद के थे, बाद में मेरे रूममेट भी रहे, ठीक है। मैंने उनसे पूछा विच प्लेस, वो जवाब ही नहीं देते थे, ऐसा लगता था मैंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया। उसके लिए भी अंदर से मेरी आवाज़ आई अपने बनारसी भाषा में, बड़ा घोंचू है यार, डफर। आंसर इज हियर, ऑल आर इंटेलिजेंट, बट क्या ऐड ऑन हुआ? कम्युनिकेशन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा था मैम। अगर मैं इसी फैन को कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट से जोड़ दूं, हमारा ही पंखा स्मार्ट हो जाएगा।
ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन कब कहलाएगा? 1000 फीचर हो, लाखों फीचर हो, डजंट मैटर, अगर आप इंटरनेट से नहीं जोड़ोगे ये आपका नहीं कहलाएगा। स्मार्ट मीन स्मार्ट सिटी, एवरीथिंग कनेक्ट टू द इंटरनेट, IoT, हर चीज़ आप इंटरनेट से जोड़ोगे। 5G में कुछ नहीं होना है। हम पढ़ते हैं बहुत स्पीड बढ़ जाएगा ना, तो अरे 4G कर लो 100%, उससे ज़्यादा समूह पर ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 5G आएगा। देश का पहला 100% एवरीथिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंडिया में एक बनने जा रहा है, आपको मालूम होगा, जिसको BSNL लॉन्च करने वाला है। हर एक चीज़, उसकी कोई चीज़ विदेशी नहीं है। जो आज से कुछ साल पहले हमारे लोग कहते थे इंडिया वाले बना नहीं सकते, लेकिन हमारे ही देश के इंजीनियर थे, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, हार्डवेयर बना 100% इंडिया में, जिसकी लॉन्चिंग आपका 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जी खुद रिपब्लिक डे पे लॉन्च करने वाले हैं, जिसका बहुत तेज़ी से काम। और वो 4G कहने के लिए प्योर सॉफ्टवेयर है। SDN का नाम सुना होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नेटवर्क, सुना आपने? वो प्योर है, यानी उसमें कुछ नहीं करना, कहने के लिए 4G है, बस एक सॉफ्टवेयर मारो। जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा, अपग्रेड कर देता है ना, विंडोज 7 विंडोज 8 कंप्यूटर वही होता है। तो डैट जो आपका बना है वो अप टू 6G तक ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते रहिए, हल्का सा कोई चीज़ बदलेंगे सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो ये आने वाला समय है, और आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी हमें उस हिसाब से डेवलप करना है। सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप करना है? सॉफ्टवेयर इसलिए डेवलप करना है कि आने वाले टाइम में हम लोग अपने ही 4G 5G 6G को अपग्रेड कर पूरा इंडिया में, ठीक है ना। तो 5G नथिंग स्मार्ट शहर, या इस मैं कहूँ कि मेरा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है। इस क्लासरूम में हर एक डिवाइस, चाहे पंखा हो चाहे ट्यूबलाइट हो, एवरीथिंग इज कनेक्ट टू द इंटरनेट। क्लियर होगी बात? यहाँ तक का सफ़र हम लोग ऑलरेडी तय कर चुके हैं, और अभी जो करंट जो तय कर रहे हैं लेटेस्ट मॉडल, AI डिवाइसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस, अब इसमें क्या ऐड ऑन हो गया होगा? कुछ तो हुआ होगा। पंखा क्या होगा? नॉर्मल फैन, मैनुअली, इंटेलिजेंट, रिमोट, स्मार्ट, कनेक्ट टू इंटरनेट, यू कैन कंट्रोल अक्रॉस एनी द वर्ल्ड। यस मैम। अब AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाते हैं ना, मशीन लर्निंग है, ऑटो सेंस, सब कुछ तो कुछ ना कुछ बोला तो है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल है। इसमें तो आप तो आंसर दे ही दोगे, क्योंकि तो आजकल का ज़माना का बात है, ठीक है, लेकिन सफ़र के बारे में जरूर था, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल, यूट्यूब का तो सभी लोग यूज़ करते हैं, मैं आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। यूट्यूब में सन 2011 से पहले यूट्यूब में ना तो कोई उसका हार्डवेयर ना ही उसका सॉफ्टवेयर, उनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो ऑटो सेंस टाइप का। उसमें जो पहला पेज खुलता था वही पेज खुलता था जो यूट्यूब ने वेब डेवलपमेंट के टाइम पे डिज़ाइन किया हुआ था। समय बदला, अब हमने क्या किया, अपने यूट्यूब के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों भी किया जा सकता है, हार्डवेयर भी हम बना सकते हैं, दोनों को हमने AI बेस इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये लैपटॉप है, फर्स्ट टाइम हमने इस लैपटॉप को ख़रीदा, पहली बार मैंने कोई अकाउंट बनाया। ज़्यादातर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जो मैं समझता हूँ और जो मेरे पास जानकारी है, चाइना को माइनस कर दीजिए और ऑफिस का ईमेल आईडी माइनस कर दीजिए। ऑफिशियल जो ईमेल आईडी होता है जो ऑफिस की तरफ से मिलता है, दुनिया का 96% ईमेल आईडी लोगों ने जीमेल पे बना रखा है। यहाँ बैठे होंगे सभी के होंगे, नो डाउट, सबने बना रखा है जीमेल पे, ठीक है। जीमेल ने क्या किया, उसने अपने हार्डवेयर, अपने जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको उन्होंने प्योरली एक ऐसी कंपनी जिसको परमिशन मिल गई 96% इम्प्लीमेंट करने का AI बेस। आपने यूट्यूब पहली बार यहाँ खोला, चैनल खोला फर्स्ट टाइम, आपके डिवाइस को नहीं पता कि मैं यूजर कौन हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, उसने सेंस किया, ऑटो सेंस और सेल्फ लर्निंग। ये आपके प्रोग्रामिंग के ऊपर है कि सेल्फ लर्निंग आपने 1 टाइम में करा है या 2-3 टाइम, डिपेंड ऑन योर प्रोग्रामिंग। मान लीजिए 1 टाइम में सेल्फ लर्निंग का आपने कर दिया, तो पहली बार में कि भाई मिस्टर श्याम कुमार जी हैं और ये इनको शौक़ है किशोर कुमार के गाने सुनने का, किसी को क्रिकेट देखने का शौक़ है, किसी कुछ भी देखने का शौक़ है। नेक्स्ट टाइम खोलेंगे तो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट माइनस करते ही वही पेज खुलेगा जो आपने सेंस किया। और सारी की सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, जीमेल से। और जीमेल किससे जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम, लिंक, हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। आपके इसी दिल्ली में सबसे बड़ा साइबर फॉरेंसिक लैब है, साइपेड लैब, द्वारका में, जानते होंगे, दिल्ली पुलिस के पास में साइपेड, उसका एक मेंबर हूँ मैं। सबसे पहले जब कोई क्राइम होता है ना,
कुछ लोगों के फ़ोन मेरे पास भेज दिए जाते, भाई ये आदमी के सोच विचार क्या, देयर थिंकिंग क्या, बताओ। मोबाइल से मुझे पता चल जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वो आपका पेज और सर्चिंग वही चीज़ आएगा जो आपने थिंक किया। तो AI इज़ अ वेरी डेंजरस, नॉट ईजी। इसीलिए केवल किसी भी कंपनी को 96% से ऊपर परमिशन नहीं दी गई है। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे खोलें या लैपटॉप खोलें और आप कहते हैं कि मैंने चीज़ नहीं देखी थी, गलत बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी जगह से उस चीज़ को ओपन किया गया और आपने खुद ही कहा सेल्फ लर्निंग ऑटो सेंड, और इसकी मेमोरी में चला गया। ठीक है, इसे 100% इसलिए नहीं कर सकते, कर देंगे तो क्या होगा, मशीनें यहाँ बैठी होंगी, ट्रेनिंग ले रही होंगी, मशीनों आदमियों से काम करा रहे होंगे। ये तो रूल, यहाँ तक का सफ़र कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अवेयर भी हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड इज द मेटावर्स। नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना है? प्लीज़ हैंड। सब आपने नाम नहीं सुना? नहीं, एकेडमी में तो नाम होना चाहिए था, ये तो काफ़ी है। इसकी पॉलिसी मैं बना रहा हूँ, इसकी पॉलिसी इंडिया में एक के लिए चल रही है। मेटावर्स, अगर मैं कहूँ कि मेरा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, आप समझ गए कि हर चीज़ इसकी, अगर मैं कहूँ ये क्लासरूम मेरा मेटावर्स क्लासरूम है, इसका क्या मतलब होगा, समझाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। कुछ आइडिया ले सकते हैं? वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा, यूजर्स विल बी वर्चुअल। पेपर में लिखेंगे तो 10 में 10 मिलेगा, मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। उसको और थोड़ा सा और प्रैक्टिकल टेंसिटी। हाँ, मैं उसी चीज़ को बना रहा हूँ। मेरे यहाँ जो लैब बनी है, वर्चुअल मेटावर्स क्लासरूम बनी है, उस क्लासरूम की खासियत क्या होगी आपको नहीं बताऊं कि ये जो क्लासरूम है मेटावर्स क्लासरूम है, उस समय एक सोच के बताइए, आप खुद ही आंसर दे रहे हो कि क्या होना चाहिए। कोई बता सकता है पीछे? अगर ये मेटावर्स क्लासरूम है और आपको बिल्कुल ना बताया जाए कि मेटावर्स क्लासरूम में हम लोग हैं, मेरा शरीर यहाँ पे आएगा, आपको पढ़ा के, अगर आप मेरे को टच नहीं करेंगे और ना बताया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा क्लोन पढ़ा रहा था, क्योंकि यहाँ लाइटिंग होगी, लाइटिंग के हिसाब से बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं लगेगा कि रियल है वो। हम रिमोटली बैठकर उस चीज़ों को हैंडल कर रहे होते। दिस वेरी, और आज की डेट में कई मेटावर्स शोरूम बने हुए हैं, कई मेटावर्स कंट्रोल रूम बने, यहाँ से बैठकर यूएस में कहीं भी बैठकर आप शॉपिंग वॉपिंग सारी चीज़ें कर सकते हैं आज की डेट में। अभी कॉस्टली है बट यू कैन डू इट। उसमें ये मेरे पास जो लीगल आया है लिखने के लिए कि अगर कोई मेटावर्स क्लासरूम में बैठा और वहाँ से मैं यहाँ पे, भाई मेरा क्लोन है ना, क्लोन तो कोई भी हैंडल कर सकता है ना आज की डेट में, उसे क्या पता, मैं तो यहाँ जो लाइट में डालूंगा, जिसकी फ़ोटो डालूंगा वही तो आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के किसी को एब्यूज़ कर दूँ, गाली दे दूँ, किसी को बुरा भला कह दूँ, कैसे क्लेम करोगे? इसीलिए अभी ये गवर्नमेंट ने इसको परमिट नहीं किया है। ठीक है, अभी चल रहा है, मेरे पास आया तो मुझे भी अभी देखना है कि कैसे पॉसिबल है, कैसे हैंडल करें, या मैं इस बात को इंश्योर करूँ कि जो आए उसी का आए। लेकिन टेक्नोलॉजी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम मैनिपुलेट नहीं हो सकता, एवरीथिंग इन मैनिपुलेशन। क्वांटम हमारा जो नेक्स्ट है, क्वांटम। क्वांटम इज वेरी, आने वाला जो समय है क्वांटम का है, उसके बिना आप नहीं चल सकते। अभी आप पासवर्ड बनाते हैं, बोला जाता है 12 अक्षर का बनाओ, तोड़ सकते हैं यस या नो? अभी आप पासवर्ड बनाते हैं, कुछ भी पासवर्ड बनाते हैं, 12 अक्षरों का बनाओ, ये सजेशन दिया ना, 8 से कम मत बनाओ, 12 तक लोग बना भी लेते हैं। क्या आप उसे तोड़ सकते हो यस या नो? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तोड़ने में चाहे आपको 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, चाहे 50 साल लगे, तोड़ सकते हो, ये तय है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर फिक्स। वो सब आज की डेट में हो, जिस दिन क्वांटम आएगा ना, कॉम्बिनेशन 5-5 मिनट में पासवर्ड टूटेंगे, 5-5 मिनट में टूटेंगे आपके पासवर्ड। ये आप भ्रम मत रहिए, क्वांटम मैकेनिक्स इतनी बहुत ही स्ट्रांग है, ये इसकी कंपटीशन 1000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वांटम जो नेक्स्ट है, क्वांटम हमारी डिवाइसें बन रही, इसके लिए सारे, लेकिन इस बार तैयारी इस तरह से की गई है कि पहले क्वांटम की सारी चीज़ें प्लस माइनस देखकर फिर हम इसको ले आएंगे। अभी आप नॉर्मल क्रिप्टोग्राफी पढ़ा होगा, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी पूरी तैयारी प्रॉपर तरीके से ला रहे हैं, क्योंकि स्पीड बहुत, क्योंकि अभी समय ऐसा आएगा कि हम बटन नहीं दबाएंगे, हम बोलेंगे, मेरा साउंड सुनेगा, सारी चीज़ें आपकी एकदम ओके हो जाएंगी, सारी की सारी इस तरह से। ठीक है ना, तो ये अभी इसके फ्यूचर में आएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये मैं इसके आपको हमने लेके डिवाइसें हमारी कहाँ थे, हम लोग कहाँ चले गए। ठीक है, और अभी मैं टेलीकॉम सेक्टर में, आईटी में आपको बोला कि 3 चीज़ों को ज़रूरत है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क।
इन तीनों की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप कुछ नहीं हो सकता। आप में से किसी बच्चे को हार्डवेयर में बहुत अच्छा नॉलेज होगी, कोई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता होगा, कोई बहुत अच्छा नेटवर्किंग जानता होगा, लेकिन जब तीनों का कम्बिनेशन नहीं करेंगे आपकी नॉलेज वहीं वहीं ख़त्म हो जाएगी। कॉम्बिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमारा जो भी चीज़ है वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कैसे होगा। 5G इज़ नथिंग, 5G में हम सारे डिवाइसों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो रही डिवाइसों का जर्नी जिसको आप लोग हैंडल करेंगे नो डाउट आगे। अब इसको इसके आगे नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं नेटवर्क की। ठीक है, सभी मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं। बाघा बॉर्डर का नाम सुना है एवरीबॉडी? गए भी होंगे आप में से, कितने लोग हैं? काफ़ी लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। बाघा बॉर्डर में क्या होता है कि 3 बजे से पहले देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन बिटवीन, जो वहाँ पे पाकिस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होता। गेट ऐसा होता है, खुला रहता है, कोई भी आ सकता है। तो एक इंडियन और एक पाकिस्तानी दोनों साथ में एक ही सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। दो अलग अलग कंट्री के हैं। जो इंडियन है, नो डाउट इंडियन के मोबाइल पे इंडियन सिग्नल आएगा टावर का। जो दूसरा है हमारे पास में पाकिस्तानी सिग्नल, दो लोग पास में बैठे, इंडिया वाले ने पाकिस्तान वाले को कॉल किया, रास्ता क्या है, हाय हेलो जो भी बोलते कैसे जाएगा, कभी सोचा है आपने? ये रियल की बात है, किताबों में लैंड मैन कैन सैन की बात नहीं है। प्रैक्टिकली में अगर दो फ़ोन रखे हैं, आपने हाय बोला, दूसरे फ़ोन में वो रास्ता आपने कभी सोचा कि रियल में इंडिया में कैसे फैला हुआ है? उसके सर्वर के थ्रू डिवाइस से फिर कनेक्ट होगा, इंटरनेट के थ्रू सर्वर से। मैं वही जानना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं अगर आपका मैम है और आप हैं, आपने एक दूसरे को कॉल किया, मैं तो बाघा बॉर्डर तो एक क्वेश्चन लिखा है, पहले तो मैं लोकली समझ लूँ कि हम एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, तो मेरा हाय शब्द दूसरे वाले के फ़ोन में कौन कौन से रास्ते से होके जाएगा, कभी सोचा? रफ मैनर में टोपोलॉजी बहुत बनाते हैं पीछे, कभी सोचा आपने? अगर आप बैठे हो बाघा बॉर्डर, बगल में पाकिस्तानी बैठा होता और उसको फ़ोन कर रहे होते, तो फिर वो आपका हाय हेलो कैसे जाता? सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस। वही तो जानना, वही चीज़ तो क्लियर करना, मेरा काम इस चीज़ को क्लियर करना। मैं इसीलिए खड़ा हूँ यहाँ पे। ये तो आइडिया कि ऐसा होगा, सब वर्चुअल चल रहा है। रियल में क्या है? मैं तो रियलिटी की बात कर रहा हूँ, वास्तव में ऐसा है कैसे? कभी सोचा आपने? किसी के माइंड में आपने बेस सही पकड़े, सर्विस प्रोवाइडर होगा। सर्विस प्रोवाइडर क्या ऐसा थोड़ी ना कोई भी आएगा कुछ भी बोल देगा, टावर खड़ा कर देगा, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होने लगा तो आपकी पूरी घर के सारे प्रॉपर्टी नाम करके बैठ जाएगा वो। ठीक है ना कुछ तो तरीका बनाया होगा, कोई ना कोई सफर तय करने, कुछ ना कुछ रास्ता दिया गया, कुछ तो होगा। यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us 1G ने हमें एनालॉग फ़ोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हो। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीज़ों के लिए तेज़ स्पीड दी। लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज़ ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off। ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही हो, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर से कनेक्ट रहेगी।
उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। अभी हमने लास्ट ईयर मुंबई, जो बृहत मुंबई से उसके बीच का जो ब्रिज बना हुआ है, नाम देने से निकल गया, वहाँ पे हम लोगों ने ड्राइवरलेस कार का टेस्टिंग किया है। एक कार हमने वहाँ टेस्ट किया, एक हमने आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे टेस्ट किया है। आने वाले टाइम में ड्राइवरलेस जो कारें हैं वो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करनी होंगी, जिससे एक्सीडेंट ना हो, आपस में कोई रॉन्ग ना जा सके। ठीक है, आप मोबाइल एप्लीकेशन दबाएंगे, अपने आप कार आपके पास आएगी, रुकेगी, उसका लेन है, उससे फिर आप बैठेंगे और चले जाएंगे। और इसका टारगेट रखा गया है 2030 तक इंडिया के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे 35-40% के बीच में। ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो ये सब संभव तब हो पाएगा जब 5G को हम पूरे तरह से इम्प्लीमेंट कर देंगे इसको। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। ये टेस्ट ऑलरेडी ओके हो चुके हैं, आज की डेट में ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और इंडिया में हमने जो 4G जो बनाया है वो सिर्फ नाम के लिए 4G है, क्योंकि प्रोटोकॉल, जैसे सर ने बोला, प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो BSNL का जो 4G आ रहा है या जो भी और कंपनी ला रही हैं, अब जो लाएंगी, पहले जो लाया वो तो उनका वो था जो क्या होता है कि सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक लैपटॉप ख़रीदा, नया नया ये लैपटॉप लिया है, ठीक है, और लैपटॉप ख़रीदने के बाद अब अपने सारे दोस्तों को कुली दिखा रहा हूँ, आज हमने बहुत अच्छा एक लैपटॉप ख़रीदा है, इसमें ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है, आपने बताया। तो अभी हमारे सर आपका नाम क्या है? इन्होंने कहा भाई टीवी खोलो, टीवी खोला इन्होंने, टीवी पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि DTU में जितने भी लोग हैं उनको सारे लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाएगा उनके अच्छे काम के लिए। लेकिन शर्त यह है कि जिसके पास में नया है या अभी अभी ख़रीदा है उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरा सर आपसे सवाल है कि आपका फीलिंग कैसे होगी, क्योंकि बाकी को तो नहीं मिलेंगे सेम लैपटॉप, ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप इस लैपटॉप को फेंक तो नहीं देंगे, तोड़ तो नहीं देंगे, इसका प्रॉपर यूज करेंगे जैसा कि बाकी लोग यूज करेंगे। उसी तरह से जब 4G लाया गया, 4G किसने नहीं लाया, प्रैक्टिकल है कि 4G किसने लाया ही नहीं। LTE टेक्नोलॉजी 3.96G है, लेकिन अग्रेसिव मार्केटिंग, अग्रेसिव जो चीज़ होती है कि हमने 4G लाया, ठीक है, तो सबको लगा 4G आ गया, LTE टेक्नोलॉजी तो 3.96G, ठीक है। अब उन्हें जैसे ये पता चला सारे ऑर्गेनाइजेशन को कि गवर्नमेंट हमारी 4G इंडिया मेक ला रही है, ठीक है, जब वो 4G आएगा, वो तो 3.96 है, और जो 4G आएगा अगर उसको हम अपग्रेड करेंगे ऑटोमेटिकली वो 5.3G तक पहुँचेगा। कहाँ तक पहुँचेगा? 5.3, पहले लेवल है 4. जब लगेगा तो 4.2G को सपोर्ट करेगा, फिर 4.6 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसको हम लोग बोलेंगे 5G। वो 5G नहीं बोल, BSNL जो करेगा 4.2 अरेंज करंट 4G के नाम से, और जैसे अपग्रेड करेगा 5G जिसे 4.6 होगा, और जैसे नेक्स्ट होगा जिसको हम आगे जाएंगे फिर आपका 5.3 तक जाएगा, जिसको हम लोग 6G या 5.5G का जो भी नाम दिया जाएगा फ्यूचर में है, उसका भी कोई वो नहीं है। बाकी कंपनी उखाड़ के तो फेंक नहीं सकती ना, उनके पास क्या था 3.96G, उन्हें जैसे पता चला 3 महीने के अंदर 5G लॉन्च कर दी गई। कैसे भाई? दे आर ओनली अपग्रेड 3.96G अपग्रेड टू द 4.3G। तो उनका जो 4.3G है वो 5G के नाम से आपके सामने अवेलेबल है। कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? पहले 5G जब तक लगाएंगे उनको मौका मिल जाएगा, ये ना हो कि BSNL का आ गया, क्योंकि मार्केट में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, सबको सारे मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं उसके लिए, इसको बाद में और देखेंगे, थोड़ा समय का ध्यान रखना मेरे को। PPT से शुरू कर दे, जो हमने क्वेश्चन जो छोड़ा था हम उसको बात करते हैं, ठीक है। पहला टेलीफोन कौन सा था? नो डाउट इस चीज़ को समझने के लिए कि सिंपल, अभी बचपन में क्या, कभी अभी दो लोगों ने आपस में
खाली डब्बे लिए हों, छेद करके बात किए हो। कहने का मतलब अगर दो सिंपल डब्बे को भी एक धागे से अगर हम बांध दे रहे हैं तो अपनी आवाज़ दूसरी तरफ चली जाती। हमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। अगर इसी धागे की जगह पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक कान तक जा रही है, कौन सा मीडिया है? एयर मीडिया की भी बात करते हैं, ठीक है, एयर मीडिया। अगर इसी बात को, धागे को अगर मैं कॉपर वायर से जोड़ दूँ, कौन से वायर से? कॉपर वायर से। प्योर कॉपर वायर कभी भी यूज नहीं हुआ, लेकिन बेसिक कॉपर वायर है, तो ये दूरी हमारी 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर हो जाती है। और इसका हमने फ़ायदा उठाया। ग्राहम बेल ने पहला टेलीफोन इस पर डेवलप किया और इस चीज़ का मतलब कि ये दूरी अगर कॉपर वायर लगा दे तो ये दूरी हमारी पूरी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक जा सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली में, कहीं भी किसी भी शहर में, हर 5 किलोमीटर के रेडियस पर एक BSNL का टेलीफोन मिलता है, टेलीफोन एक्सचेंज। उसका कारण क्या है? जब से टेलीफोन शुरू हुआ और आज की डेट तक जिस मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है कॉपर वायर। पहले कॉपर होते थे, एल्युमिनियम के साथ मिला दिया, फिर ग्लास के साथ मिला दिया, अभी जो करंट है वो कैडमियम के साथ में, ठीक है। तो अभी मैं मीडिया की बात करता हूँ। सिंपल कम्युनिकेशन की सारी मीडिया हैं, सारे नेटवर्क में यूज होते हैं, कोई मीडिया आउटडेटेड नहीं होती। नंबर 1, हर मीडिया का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिक्वायरमेंट के इस्तेमाल किया जाती है। हम लोग फट से लिख देते हैं आउटडेटेड, नथिंग इज आउटडेटेड। कॉपर मीडिया उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को भी मेंटेन करना आसान नहीं है, ठीक है। अभी मैंने एयर 30 से 40 मीटर, कॉपर वायर का 5 से 6 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन जो अभी भी हो रहा है वो कॉपर वायर पे हो रहा है। लेकिन अब ये दूरी बढ़ानी थी, केवल शहर के अंदर लोगों को बात नहीं करना था, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, तो वही कॉपर वायर को ज्योमेट्रिकली डिजाइन बनाया गया, उसको नाम दे दिया हम लोगों ने कोएक्सियल वायर, ठीक है। उसके बाद भई थोड़ा और दूरी बढ़ाओ, वायरलेस करो, ठीक है। तो हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आई, माइक्रोवेव रेडियो में, ठीक है। 1, 2, 3, 5, 15 और 40 किलोमीटर तक हम इसका मूवमेंट कर सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यहाँ से अगर अमेरिका बात करना हो तो क्या हम सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, हाँ या ना? हाथ उठाइए तो पता चलेगा। यहाँ से अगर मुझे अमेरिका बात करनी हो तो क्या आप लोग सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं? बीच में कहीं सैटेलाइट आता है, यस या नो? आता है? श्योर? मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। भाई हाँ होगा या ना होगा आंसर? आप दोनों में तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ या ना यूज होता है? पक्का? मतलब आपको लगता है यूज होता है, ठीक है। घर में डिश टीवी है, आंधी बारिश तूफान आता है, क्या होता है? इंडिया के अंदर ही अगर मैं सैटेलाइट पर डिपेंड हो जाऊं, यहाँ गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं बारिश है, कहीं तूफान आ रहा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ट्रेडिशनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक नेचुरल इंटरफेरेंस, नंबर 1। दूसरा, एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है? मैं आपको हमेशा ये मैं चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगी। एक सैटेलाइट को बनाने में कम से कम, बहुत तेज भी बनाएंगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, कम्युनिकेशन सैटेलाइट 4 साल। सैटेलाइट के अलग अलग यूज होते हैं ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3 से 4 साल मिनिमम लगते हैं बनाने में, ठीक है। एक तो नेचुरल इंटरफेरेंस, समय बहुत लगा। तीसरा, क्या गारंटी है कि सैटेलाइट बना दिया तो आपने सही तरीके से लॉन्च कर दोगे? चंद्रयान 2 आपके सामने है, वो भी छोड़ दीजिए, सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, हम डिपेंड हो गए सैटेलाइट पे। क्या नाम है मैं आपका मान लो इसरो में पोस्टिंग हुई, इसरो का सेंटर है हमारे पास में, वहाँ पोस्टिंग हो जाती है, कोई सैटेलाइट में खराबी होता है, क्या मैं आपको ऊपर भेज कर ठीक करा सकता हूँ? हमेशा इंजीनियरिंग ये चीज़ का ध्यान रखिए, हम बाद में सपना कुछ भी देखें, प्रैक्टिकली जो संभव नहीं है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज ओके, ये बात सही है कि 3 सैटेलाइट से हम पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसके साथ होने वाले जो प्रॉब्लम्स है मैंने आपके सामने रख दिया। क्या ये संभव है? इसलिए हम सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं रह सकते। सैटेलाइट इसलिए इसके बाद में बात करेंगे। अभी जो हमारा जो पूरी दुनिया का जो कम्युनिकेशन है ऑप्टिकल फाइबर पे, ऑप्टिकल फाइबर में कोई डिस्टेंस का बाउंडेशन नहीं है, सैटेलाइट में भी नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में भी नहीं है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के साथ प्रॉब्लम बहुत है, तो इसके को 1 बाय 1 मूव करूंगा। सबसे पहले सिंपल, इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे, आपको पूरा नेटवर्क का ABCD पता चल जाएगा। जो चीज़ मैंने आपसे पूछा था कि बाघा बॉर्डर पे 2 लोग हैं, एक इंडियन और पाकिस्तानी, या आप जो बात कर रहे हैं इसका जो पाथ है रियल में हमारे देश के अंदर कैसा है, ठीक है। तो टेलीफोन में सबसे पहले, हाँ बढ़ाते रहिए इसको, एक सबसे पहले जो चीज़ होती है स्विच रूम होती है। क्या होता है हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट बढ़ाते हैं, मैं बढ़ाता रहूँ फटाफट। स्विच रूम होगा, लुक वाइज ऐसा होगा, कुछ लोग बैठे होंगे कंप्यूटर पे और सारे, नोबडी अलाउ इन दिस साइड,
ठीक है। एक रूम होगा आपका MDF रूम होगा, जिसमें बहुत सारे वायर्स मिलेंगे आपको। एक रूम होगा आपका पावर रूम। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आपका कॉलेज हो या कोई भी, जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, वही व्यवस्था है जो आपके घर में है। घर में अगर लाइट चली जाती है, आपने क्या किया? इन्वर्टर लगाया, लाइट गई, बैटरी पे आ गया। आप वहाँ पे इंतजार कर सकते हैं कि लाइट आए या ना आए, कर सकते हैं ना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, लाइट गई, बैटरी पे लोड आया, फिर हम जनरेटर चलाएंगे, फिर मेंस आएगा, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था होती है। ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक पावर रूम होता है, जिसमें पूरा एक बैटरी रूम होता है, जो बड़ी, जहाँ पे 24 घंटे सेंटर है। हमारा फरीदाबाद बहुत बड़ा इंटरनेट का डेटा सेंटर है, जहाँ पे सारे इलेक्शन कमीशन, आधार कार्ड और सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पे एक पल के लिए बिजली नहीं जानी चाहिए। तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसी व्यवस्था, एक पूरा पावर कंट्रोल करने के लिए एक पावर रूम। लोड गया, मेंस फेल हुआ तो पूरा का पूरा बैटरी रूम। ठीक है। मेरी पहली पोस्टिंग जो करी थी ना, यहीं करी थी। मेरा काम क्या था, सुबह सुबह उठ के पुराने मैंने वो थी बैटरी, पानी चेक करो किसी का पानी कम तो नहीं हुआ, क्योंकि एक्सचेंज में पावर सप्लाई लगती थी -48 वोल्ट, एक बैटरी 2 वोल्ट का होता था। ठीक है। तो सबसे पहला काम यही काम, 2 सेट बनते थे और सारे हम लोग चेक करते रहते थे। ठीक है। उसके बाद मुक्ति मिला, मेंटेनेंस फ्री बैटरी आ गया कि पानी चेक करने से मुक्ति मिल गई। ठीक है। नहीं तो एक इंजीनियर की पोस्टिंग होती थी, केवल बैटरी चेक करो, ताकि 24 घंटे टेलीफोन सेवा चलती रहे। ठीक है। और एक रूम आपका मिलेगा ट्रांसमिशन रूम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूम होगा, लुक वाइज स्विच रूम जैसा ही होगा ये। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद में, ये तो चीज़ देखी होगी, लोकल कॉल, ISD कॉल, STD कॉल, इंटरनेशनल कॉल अभी भी आपके सामने है, आने वाले पीढ़ियों में नहीं होगा। लेकिन हर चीज़ का सफ़र वहीं से शुरू होता है जहाँ बैक से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोकल कॉल का मतलब समझते हैं, टेक्निकली मतलब क्या होता है। लोकल कॉल में, ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाया आपको, मैम बढ़ाते रहिए। आपके घर में अगर कोई भी टेलीफोन लगा होगा, कॉपर वायर निकलेगा, एक बॉक्स लगा होगा जिसको हम LGO बॉक्स बोलते हैं। ये यहाँ पर आपका एक DP होगा बाहर पोल पे, उस पर। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो DP है, अगर आसपास 5 घर हैं तो इसमें से 5 वायर अलग निकलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वायर एंड टेलीफोन वायर। उसमें क्या डिफरेंस है, बिजली के वायर में एक ही प्लग के अंदर पंखा, ट्यूबलाइट सब लगा दो, टेलीफोन में नहीं था। हर एक चीज़ का हम इंडिविजुअल लगाएंगे। ठीक है ना। 5 का इकट्ठा हुआ वायर, फिर ज़मीन में गया, रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स भी आपने देखा होगा, ये आसपास के जितना एरिया में इकट्ठा किया, और फिर ये जो बड़ा सा बॉक्स कहीं दिख गया, उसके बाद में आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं आपका वो होगा, टेलीफोन एक्सचेंज होगा। और फाइनली एक्सचेंज में ये MDF, अब इंटर के, MDF इज नथिंग नियर बाई 5 to 6 किलोमीटर। कौन सा वायर यूज कर रहे हैं हम लोग? कॉपर वायर का। 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस पे जो भी टेलीफोन थे उनका इकट्ठा होना, हर एक का एक वायर अलग होगा। और फाइनली इसकी एंट्री होगी स्विच रूम में। पुराने ज़माने में यहाँ पे पहले इंसान बैठा करते थे, इसका मैंने है PPT आके दिखाऊंगा। पहले जब मिलाते थे ना, अमिताभ बच्चन की एक मूवी होती थी दीवार, मैं बोल रहा हूँ फला पर्सन से बात करना है, जो भी ऑपरेटर होता था मैनुअली जोड़ता था। मैनुअली जोड़ने को हम क्या बोलते हैं? स्विच करना। स्विच का मतलब क्या है? स्विच लगे हैं। स्विच का एक्चुअल मीनिंग है टेम्पररी बेसिस पर 2 लोगों को आपस में कनेक्ट करना, वही स्विच है। पहले इंसानों के द्वारा, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी जो डायग्राम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का है। फिर आज के ज़माने में आपका द्वारा बनाया हुआ IP स्विच, प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड। काम एक ही है। काम क्या है? 2 लोगों को आपस में जोड़ना। अगर इस बंदे ने फ़ोन मिलाया, उसका वायर यहाँ पर है और यहीं पे जोड़ दिया, यही हो सकता है ना, 5 किलोमीटर रेडियस में किसी को मिला दिया, दिस इज द नोन एज द लोकल कॉल। लोकल कॉल का मतलब समझेंगे? लोकल कॉल का मतलब सेम वायर। ठीक है। अगर ये नहीं है, हो सकता है कि भाई दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली बहुत बड़ा है, तो अगर उसमें नहीं है, शहर के ही दूसरे के उसमें है, उसको बोलते थे ट्रंक कॉल, STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है। उसमें देख लीजिए, उसके पहले स्विच देख लीजिए। पहले आपका ये स्विच इंसानों के द्वारा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में ये पहला जो स्विच आया इसको हम बोलते थे स्ट्राउजर बार। इसके बाद जो नेक्स्ट आज की डिजाइन ऑटोमेटिक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, मैम बढ़ाओ, ज़्यादा बढ़ा दिया, हाँ छोड़ दीजिए। ये है हमारा क्रॉस बार। बहुत ज़्यादा पहले पहुँचती, पहले कितने सारे लोग एक टेलीफोन, पहले BSNL में टेलीफोन थे 1.5 लाख, एम्प्लॉइज थे 3.5 लाख। आज BSNL में टेलीफोन है 3.5 करोड़ और एम्प्लॉइज हैं केवल 60 कितना, ये आपका ये 60,000 के आसपास में, बहुत ही कम हो गए।
ओनली 60-70,000 के बीच में। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया। और आज का जो लेटेस्ट स्विच है हमारे डेटा सेंटर का जो है आईपी स्विच, प्योरली सॉफ्टवेयर बेस है, केवल रैक है, नो बडी इज मैनुअली हेबल है, एवरीथिंग गो टू द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर ने हमारी पूरी चीज़ें बदल दी। नेक्स्ट इज ट्रंक कॉल। अगर स्विच बदल जाए, मैम थोड़ा फास्ट करिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं, यहाँ तक आए और स्विच में आ गया यहाँ पर। अब इस स्विच ने कहा भैया जिसको नंबर मिला रहे हो हमारे यहाँ तो है नहीं वो, तो जोड़े किसको? हर शहर के अंदर एक मेन स्विच बनाया जाता था जिसको बोलते थे डी टैक्स। आज के ज़माने में इसी डी टैक्स का नया नाम है आईपी टैक्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल टैक्स, ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। तो ये इसने कहा हमारा नहीं है, तो यहाँ से लेकर मेन शहर के मेन एक्सचेंज भेज दिया। और ये जो कम्युनिकेशन है यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांसमिशन रूम, ये जो कम्युनिकेशन व्यवस्था है आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो ये 1986, कौन सा ईयर? 1986 से ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, वेरी क्लियर। ये क्या है 90। अब क्या है, लोग घरों में देना शुरू किए इसलिए लगता है नया है, नहीं, 1986 तो बहुत हो गया। हम में से बहुत सारे हो सकता है कुछ लोग ऐसे पीछे जो बैठे हैं शायद पैदा ही ना हुए हों, है इसमें से कोई पीछे बॉन्ड? हाँ देखो वहाँ से गया, ठीक है ना, वो इस समय नहीं थे फिर, लेकिन बहुत पुरानी ने। अभी इसका काम क्या, कौन सा इंसान, इसका काम क्या है, कौन सा एक्सचेंज रूम, ठीक है। और फिर स्विच में जोड़ दिया, लोकल फिर जुड़ गया। दिस इज द ट्रंक कॉल, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है। आप बहुत अच्छे समय में हैं, आपके पास सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। मेरी जब नौकरी लगी, मैंने बोला ना मेरी पोस्टिंग कहाँ हो गई थी, बागपत जिला। आप में से है कोई बागपत जिला? नियर बाई बागपत जिला है। सन 1999-2000 में पहले कोई ना इंटरनेट था, ऐसे तो नहीं था घरों में किसी का इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था उस समय पे। वहाँ पे बागपत जिला में ये हुआ कि दो तरह के लोगों की पोस्टिंग होती थी। एक जिसके साथ डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ हो गया तो कहते हैं पनिशमेंट पोस्ट है। दूसरे नए जिनकी नई नई नौकरी लगी है, उसे तो कहीं भी पोस्ट कर दो, नौकरी तो करेगा। तो हम 5 लोग थे, हमने सारे उठा के वहाँ पोस्ट कर दिए थे, नई नौकरी थी। सिनेमा हॉल में ना कोई पिक्चर हॉल ना कुछ, करें तो कैसे करें। तो मैं सोता था स्विच रूम में, मैं प्रैक्टिकल वो जो बात वहाँ सही है वही बात आज भी सही है। एक हफ्ता तो बीत गया किसी तरह, एक हफ्ते के बाद दिमाग घूम गया मेरा, यार टाइम पास नहीं हो रहा, अंदर इंटरनेट है, कुछ भी नहीं था ना उस समय पे। लेकिन मैं यहाँ पे भी जितने लोग बात कर रहे हैं तब तक मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे। ये जा कहाँ से रहा है, मैंने स्पीकर लगाया, 2.5 साल की नौकरी निकल गई मेरी। कौन क्या बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस टाइम कैसे, उसके मूड के हिसाब से स्पीकर लगाया, काम खत्म। ये उस जमाने की नहीं, आज की भी सच्चाई है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना ऐसे ऐसे बड़ा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, कुछ नहीं होता। ये काहे का इंक्रिप्शन, ये तो हमारे बात में प्रैक्टिकल, आपको मैं रियल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, दिस रियल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब शहरी बदल जाए, अब क्या हो जाए, शहरी बदल जाए। मैंने मिलाया दिल्ली में हूँ, मिला दिया नोएडा, मिला दिया मुंबई, तो नेक्स्ट व्यवस्था क्या होगी। बढ़िया। इंडिया को 4 भागों में कौन से टेलीग्राफ एक्ट है, 1885, किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया, ब्रिटिश ने बनाया ना, आज भी चल रहा है। अब जाके अब बदले इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। उस समय उन्होंने इंडिया को 4 भागों में बांटा। ये इंडिया की अच्छी बात थी कि जब टेलीफोन की शुरुआत हुई, ग्राहम बेल ने शुरू किया, लगभग सेम टाइम में हमारे देश के अंदर भी आ गया था। तो हमारा टेलीफोन के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में हम कहीं से पीछे नहीं है, ठीक है। उन्होंने इंडिया को 4 भागों में बांटा, NTR, WTR, STR, नॉर्दर्न टेलीकॉम, ईस्टर्न वेस्टर्न, नाम से समझ में आ गया होगा। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है वो आज के कंट्री के हिसाब से बनाया है, नहीं तो उसमें पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्से भी थे, ठीक है। अब ये सेम उसमें मिला है, हर टेलीकॉम रीजन के अंदर 2 हेडक्वार्टर, इसके अंदर दिल्ली और देहरादून। कौन सा हेडक्वार्टर है, दिल्ली और देहरादून, ठीक है। अगर मैं सीधा मिलाऊं इनमें कहीं, तो डायरेक्ट आपस में सारे फाइबर, एक शहर से दूसरे शहर के अंदर फाइबर पड़ा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली। और एक आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक शहर से दूसरे शहर के अंदर का जो फाइबर है, शहर के अंदर कितना भी फाइबर डालो, कितना भी टावर लगाओ, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी कंपनी कुछ भी करे और लाइसेंस ले डालता रहे। लेकिन जैसे ही एक शहर से दूसरे शहर की बात होगी, नो फन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मैनेज बाय द BSNL, ऐसे नहीं किसी को दे देंगे। हाँ, गवर्नमेंट ने कहा PPP मॉडल जरूर लगेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि काम फास्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ 100% हम प्राइवेट हैंड ओवर कर देंगे, तो फिर सिक्योरिटी, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी मोबाइल पे है। जब मैं सुन सकता हूँ तो क्या क्या नहीं कर सकता हूँ,
ठीक है ना भाई, कुछ हुआ थोड़ी है, हैंडसेट ही तो बदला है, वो भी बात करते हैं अभी आपको, ठीक है। तो अगर एक शहर से नेक्स्ट बढ़ाइए आप लोग, अगर और बढ़ाइए, यस, ये फ़ोन है, किसी ने मिलाया, शहर बदल गया, MDF में गया, टावर पे गया, ओके, यहाँ था, अभी स्विच रूम ने कहा कि नहीं है भाई, मेन शहर है। जैसे हमारे शहर में डीटेक्स है, हर शहर के अंदर मेन एक्सचेंज होता है, अभी भी गांव में शहर में जाओगे ना बड़े बड़े मेन एक्सचेंज जाओ, पुराने टाइम में हर आदमी बता देता था मेन एक्सचेंज कहाँ है। आप लोग तो नए हो, लेकिन हमारी जब नौकरी लगी तो मुझे कुछ इतना, मेरठ शहर में जब उतरा तो मुझे इतना ही बोलना था कि मेन एक्सचेंज ले जाओ, रिक्शा वाला उठाया लेके चला धाड़ दा, उसे पता था कहाँ है, ठीक है, मेन एक्सचेंज ले गया। तो जैसे हमारे में ना, वहाँ अगर NTR सेम रीजन में है, दे विल बी डायरेक्टली कनेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, वहाँ चला हमारे शहर का, दैट इज कनेक्टेड, दिस इज द, एक शहर से दूसरे शहर के बीच का कंट्रोलिंग हो गया, ठीक है। अब आपकी बात आई, अब परेशानी क्या हो रही थी, परेशानी ये हो रही थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम वायर डाल रहे थे, जितने वायर उतने टेलीफोन, ये तो बात समझ में आएगी, जितने कस्टमर उतने ही वायर डालना है, वेटिंग लिस्ट, गवर्नमेंट परेशान, कह रही यार कुछ तो करो, टेलीफोन बढ़ाने हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक नई टेक्नोलॉजी लाई जिसे आप लोग मोबाइल कहते हो, लैंडलाइन मोबाइल में देयर इज नो डिफरेंस। उन्होंने कहा कि भाई ये जो झंझट है ना केबल डालने वाला, इसे मुक्त कर दो। देखिए ये आपका लैंडलाइन में, ये हमारी पुरानी लैंडलाइन सिस्टम थी, नए टेक्नोलॉजी के अंदर स्विच का नाम बदल दिया, BSC कर दिया, जितने भी MDF थे, और 5G में और भी नाम बदल दिया, उसमें तो रेडियो नेटवर्क बोलने लगे हैं उसमें, ठीक है। जस्ट अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक मुक्ति करने के लिए यहाँ पे इन्होंने टावर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये टावर लगा दिया, आप इससे जुड़ गए, और टावर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, और एक टावर से, अगर हम सबसे पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें 2G की, तो एक टावर से 1024 कस्टमर कैन बी कनेक्टेड, ठीक है। और हमने यहाँ से जोड़ा, ये BSC क्या है, जितने भी टावर थे, ठीक है, उससे जुड़ गए। उसके बाद दूसरे साइड पे, अब जहाँ लैंडलाइन में जाना, इंटरनेट जाना, जहाँ भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट करना है, कुछ भी करो, मोबाइल से आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि दिस इज ए स्मार्टफोन। मैंने सवाल पूछा था बाघा बॉर्डर, मेरा क्वेश्चन क्या था, बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर पे 2 लोग खड़े हैं, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी, ठीक है, नो सिग्नल, इंडियन वाले ने फ़ोन किया टावर पे, टावर ने कहा गया स्विच पे, उसने कहा भैया ये तो हमारे शहर का नहीं, मान लो बाघा बॉर्डर है, टावर कहाँ लगा होगा, अटारी पे लगा होगा, अटारी ने डिसाइड किया भाई हमारे लोकल तो नहीं लग रहा, जिसके भी मिलाया नंबर इन्होंने, वो शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ भेज देगा, अमृतसर। आप सोच सकते हो कौन सा होगा, अमृतसर। अमृतसर ने कहा अरे यार ये तो हमारे NTR का भी नहीं है, फिर हेडक्वार्टर भेजेगा दिल्ली या देहरादून, एज पर पाथ जो भी है, खाली है, जो भी इसका रूट है वो टेक्नोलॉजिकल है, सॉफ्टवेयर बेस है, आजकल बहुत आसानी से हो जाता है। तो उसने भेज दिया दिल्ली, दिल्ली ने आइडेंटिफाई किया भाई ये तो इंडिया से बाहर का है, और इंडिया से बाहर कहाँ से जाती है कॉल, लोकेशन, लोकेशन फिक्स है, ऐसे नहीं कोई चीज़ हवा में जा रही है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो कॉल बाहर जाती है मुंबई पे, मुंबई जाएगा, मुंबई ने पहचाना समुद्र के अंदर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है, मुंबई टू कराची, बस रिलेशन 2 देशों का आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो लाइन बंद, वहाँ पे भी हम ही जैसे लोग बैठे हैं, कौन पंगा ले, लाइन बंद करके रखो, जब खीर बिरयानी खानी होगी तब देखी जाएगी। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है, फिर हमारी जो कॉल होती है, पीछे की साइड में चलो, ये है आपका नेटवर्क, फिर हमारी जो कम्युनिकेशन कॉल होती है, यहाँ से मुंबई से निकलता हम इधर ना भेज के हमारी फॉरवर्ड कॉल होती है ईस्टर्न की साइड में, चेन्नई, सिंगापुर होते हुए, हांगकांग होते हुए, लॉस एंजल्स, अमेरिका का जो इंटरनल होगा वो होगा, यहाँ से लेके लंदन, समुद्र के अंदर सारे होते हुए, समुद्र से जो दूरी होती है करीब 10 किलोमीटर की होती है, पूरा ऑप्टिकल फाइबर घूमते फिरते, दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 2 लोग बैठे थे, हाय शब्द कहाँ घूम के गया। इसीलिए पुराने टाइम में लोग कहते थे यार ये अमेरिका का कॉल बड़ा सस्ता है, पाकिस्तान का कॉल महंगा है। समझ में आ गया होगा आपको क्यों, दिस इज द पाथ, इसमें कोई कन्फ्यूजन, क्लियर होगी बात, ठीक है। एक छोटा सा आपको वीडियो है तो भी दिखा देते हैं, जो रियल स्ट्रक्चर है, ये समुद्र के पूरे केबल्स पड़ी हुई, अगली लड़ाई हमारी समुद्र में है। कहीं भी सैटेलाइट आया नहीं आया,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं सैटेलाइट नहीं यूज होता है, मैं बताऊँ कहाँ पर होता है उसका। इस पे डाटा में वो मैसेज लिखा हुआ है कि कितने टाइम इसको पूरा किया हुआ है, सारी चीज़ें। $39 लैंडलाइन पॉइंट फ्रॉम जर्मनी टू कोरिया स्पैनिंग 24,000 लाइन, लॉन्गेस्ट केबल है आपके। ये अभी आज की डेट में ये आपका 2 साल पुराना डाटा है। आज की डेट में इंडिया पूरे वर्ल्ड का 96% जो आपका डेटा कम्युनिकेशन होता है वो 99 नहीं है, आज की डेट में 96% है। बाकी डेटा हम लोगों ने सैटेलाइट पे भी लैंड ओवर किया है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हैं इंटरनेशनल गेटवे बनाए, ना बोलते हैं इंटरनेशनल IGW इंटरनेशनल गेटवे। लेकिन इंटरनेशनल गेटवे का पहला वो है कि सबसे मेन जो होता है, जैसे आपके कॉलेज है एक मेन गेट बना होगा, बाकी गेट स्पेशल केस में ही परमिशन दी जाती है या स्पेशल लोगों के लिए दी जाती है। तो उसी तरह से जब फर्स्ट प्रीफरेंस फॉर द इंटरनेशनल गेटवे या बाहर के देश कर रहे हैं तो हमारा मुंबई है। अगर मुंबई किसी वजह से अवेलेबल नहीं है या लोडेड है तब उसकी हमने कहीं ना कहीं उसकी ट्रांसमिट किया किसी और जगह।